Hello friends, so today is 2nd October. 2nd October every is a very important day with respect to celebration of World Non-Violence Day, or you can say International Non-Violence Day. And today is both Mahatma Gandhi's and Honorable Lal Bahadur Shastri's birthday. अब वो हमें देखना चाहिए और लाल बहादुर शास्त्री जी के बर्थडे से मैं आपको बता दूं देयर आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोथ इन द प्रीलिम्स एंड आल्सो इन द मेंस एग्जामिनेशन इट इज पॉसिबल कि क्वेश्चन आ जाए. So welcome to Ansarkari, and I hope that though imperfect, but we help you to understand and to learn and to move forward toward your goal because nothing is perfect. But yes, definitely we move ahead and faster than others when you realize, when you move ahead with a broad mind and with clarity of thought. Do share, like, and subscribe our channel. It is very important so that our voice reaches to everyone, those who are relevant. So Gandhi Jayanti, 2nd October, there are so many news items about this, but then we are not talking about that only. We will be seeing what other developments are there, what other things we can take place. So Mysuru Dashara, there is a picture over here. Can you make out the kind of, uh, design and the kind of handicraft they are being shown over here? So this is very important to have a broader look, to have a broader outlook. And PM has launched 5G services. This is just a news item, but then I'm sharing with you that out of total 72 gigahertz spectrum, 5 to 51.2 gigahertz spectrum is sold out. So ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम की एयरवेव्स कैसे करके क्लासिफाई होती हैं, कैसे करके उनका एक जो साइंटिफिक हमें एंगल पता होना चाहिए. बेसिकली द वेव्स, how important it is there for us in terms of communication, ये आपको देखना चाहिए, आपको उसके आइडियाज को ध्यान में रखना चाहिए. ये अपने आप में जनरल स्टडीज पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट हो गया. खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. ऐसे का टॉपिक हो सकता है, एथिक्स में डायरेक्टली आ सकता है, आप कहीं कोट कर सकते हैं, और वैसे भी आपको ऐसा लाइफ में थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है. AIMS is going to revise OPD registration. So this is a case study. This is a case study because it is happening in the Premier Institute of India. So like for every other sector and also for other hospitals in India, it is a wonderful example. For example, OPD के लिए एक डेजिकेटेड टाइम स्लॉट होगा. OPD के लिए आपको रिस्ट बैंड मिलेगा. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप वहाँ पे कियोस्क होगा, आप रजिस्टर करा सकते हैं. वेटिंग एरिया अलग से है. अगर आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आपका नंबर नहीं है तो आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप इनसाइड यू कैन गो अराउंड एंड जस्ट वॉक अराउंड. जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं दे मस्ट नॉट लीव देयर सीट्स एंड गो टू कैफेटेरिया एनी टाइम नाउ एंड देन. दे मस्ट वर्क विद लॉट ऑफ सिंसियरिटी. और दूसरा, जो पेशेंट चेक इन जो प्रोसीजर है उसको पेपरलेस या उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस कैसे बनाया जाए ताकि चीज़ों को किया. सो दीज आर ह्यूमेन, these are all humane ideas which definitely makes a difference. This is an example how you can think of कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या करोगे. न्यू एम्स डायरेक्टर जो है उन्होंने इस प्रकार के चेंजेस को इम्प्लाई किया है. कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीक्षा भूमि. सो दीक्षा भूमि, one PT fact I am telling you, Diksha Bhumi is the place which is linked with Honorable डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब. तो दीक्षा भूमि वह स्थान है जहां पर आप कह सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर जो है उनके जीवन और उनके कार्यों से जुड़ी हुई बात आप कर सकते हैं. दीक्षा भूमि, नाम से ही सोचिए आप, दीक्षा. सो वहाँ कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में वो दीक्षा भूमि में, और नागपुर में दीक्षा भूमि है. ऐसा आपको सोचकर आइडिया आना चाहिए. सिमिलरली मूविंग फर्दर, as I am telling that today is Gandhiji's birthday, so that is why we seek inspiration from him on daily basis. But then this is more important. Center is hiking midday meal per child, so cooking cost by 9.6%. So from the prelims perspective आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीएम पोषण इंडेक्स है वो ट्रैक करता है प्राइसेस में मिड डे मील बास्केट के, और उसको रिवाइज करता है, और कुकिंग कॉस्ट एनुअली रिवाइज करता है वो. सेकेंडली, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द प्राइसिंग, जो प्राइसिंग है कंपोनेंट्स की, वो 60-40 शेयरिंग होती है. 60% इज विद द यूनियन यूनियन गवर्नमेंट एंड 40% इज विद द स्टेट्स एंड द यूटीज. सिमिलरली 90%
In case of northeast states, Jammu Kashmir, Himachal and Uttarakhand, 10% is with states, these hilly states, and 90% is with the center. जो cost of food grain है वो center पूरा borne करता है. It is borne by the FCI. और जो रिवीजन कमेटी बनाई गई थी जिस जो बोल रही है कि भाई कॉस्ट बढ़नी चाहिए, वो जो है इट इंक्लूडेड मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी एंड नीति आयोग एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, प्लीज चेक आउट द स्टेटस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसका स्टेटस क्या है. दैट विल हेल्प यू. सिमिलरली आप ये भी देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव इज दिस, टोटल हाउ मच, यू नो, हाउ मेनी चिल्ड्रन आई शुड से, या कॉस्ट कितनी है इसकी टोटल ओवरऑल. जस्ट यू गूगल इट एंड यू विल फाइंड इट, आप उसको देख पाएंगे. मूविंग फर्दर, if someone is saying that women should read the constitution and the Hindu code bill instead of fasting during 9 days of Navratri, so definitely it is a little radical, it is definitely not desirable in taste. बट देन क्या इसकी सजा ये होनी चाहिए कि दलित लेक्चरर को उनकी पोस्ट से सैक कर दिया जाए. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि this will result in being free of slavery and fear if they are reading constitution and Hindu code bill rather than fasting in Navratra. So ये obviously the hidden idea and किस context में कहा गया, पहले कहा गया बाद में कहा गया, ये बात सामने नहीं है. But then I am just telling you कि कैसे एक case study public domain में आप देख सकते हैं. Moving further about PFI. So PFI has been born. It has been a militant phase. PFI is a terrorist. It is indulged in terrorist activities, and that is why action has been taken. Rest, as you know, the case is developing. Moving further, about Durga Puja. So UNESCO has declared Kolkata's Durga Puja in the list of intangible cultural heritage because it is defining social landscape, it is defining economic domain, it has got economic dimensions, it is, it is a sociological phenomena, unique sociological phenomena. Whole community is involved, whole society is involved, and there is beginning from the artisans to the kind of raw materials you are using, the kind of biodegradable material you are using, the kind of message that you are doing giving out through Durga Puja. So these all things make it a sociological phenomena. कैसे जीवन से जुड़ा हुआ है, लोग मिलते हैं, शादी विवाह की बातें होती हैं, लोग जीवन की बातें करते हैं, अपने कॉलेज और स्कूल से लेकर अब तक का जीवन पूरा जुड़ा हुआ है. तो वर्ड सर्वजनीन means initially you can say men के लिए हो सकता है, लेकिन definitely there is no gender identity involved with it, and it is a kind of a puja where everyone is involved to invoke goddess Durga. That is what we should keep in mind. And the story says that कि goddess को जो है वो आप कह सकते हैं विद्यावासिनी बारोवारी टोला जो गुप्ती पारा में है वहां से शुरुआत हुई थी इसकी. जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट अदरवाइज इट कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम एज सच. सिमिलरली दुर्गा पूजा एक न्यू होम कमिंग है डीटी की, और ये जो है अपने आप में पूरा वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल बन गया है. जैसे कि सिटी में दुर्गा का जो ओल्डेस्ट टेम्पल है कोलकाता में, दैट इज कोलकाता कौसीपुर, काशीपुर नाम होगा लेकिन उसको हम कौसीपुर, वो दैट्स हाउ इट वाज प्रोनाउंस्ड, दैट इज हाउ इट इज देयर. सीजनल हार्वेस्ट एंड डीप सेंस ऑफ कम्युनिटी, ये दो की वर्ड्स हैं. तो आप अगर बंगाल में अलग अलग एरियाज में, गाँव में, तहसील में अगर आप घूमेंगे तो आपको हर जगह अलग अलग दिखाई देगा. जैसा कि हमारे यहाँ 3 फोटोग्राफ्स हैं, तो आइडियल्स आर देयर, मिट्टी के बनते हैं पुराने घरों में, लोग अपने घरों में रखते हैं. एंड इट इज हैविंग इट्स ऑसम ऑन फिनोमिना एंड ऑल्सो क्लैरिटी बाय विच पीपल go into different kind of environment, and they put their best because they believe in the ideas and believe in the soul of this phenomena. That is very very important. Going further, I am giving an example in terms of self help group. जो कम्युनिटी के एक्टिविज्म है उसके महाराष्ट्र के दो लीडर्स के यहाँ पे एग्जांपल है, रविंद्र एंड समिता कोहली मैडम. दोनों का यहाँ पर फोटोग्राफ वी कैन सी. सो दे हैव डिवोटेड देयर होल लाइफ इन द चंद्रपुर area for treating tribals of बैरागढ़ in अमरावती from a very very nominal fees. और वो जो है उन्होंने प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था, एंड दे हैव बीन डूइंग इट. उन्होंने ग्रेट सेक्रीफाइसेस किए, और he would ask her, the doctor साहब will ask the wife to beg for money if the patient did not have even the little money required for treatment. और स्मिता इज एन आउटस्पोकन वुमन हु धीरे धीरे उन्होंने अपने हस्बैंड को मॉडरेट किया, और पैशनेट एडवोकेट हैं वो भी. दोनों ने मिलके दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाया और ट्राइबल वुमेन के राइट्स को उन्होंने प्रोटेक्ट और प्रमोट किया. सिमिलरली और भी जगह हैं जैसे समीक्षा,
समीक्षा जो है पुणे की, मतलब जो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट हाउ शी गॉट मैरिड एंड देन दैट्स हाउ धीरे धीरे विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी चीजें भी इम्प्रूव हुई. अदर एग्जांपल इज ऑफ द टीम ऑफ बंधु धोत्रे साहिब और उनकी टीम ने चंद्रपुर फोर्ट को भी क्लीन किया. सो दे टेक अप मोन्यूमेंटल प्रोजेक्ट्स और धीरे धीरे उसको वो अपनी तरफ से करते हैं. फॉर एग्जांपल, an IS officer of Maharashtra cadre, Ashutosh Salil, he says that Bandhu is not just his work, he is also where from he comes from, also what his failings are. So being in change in the footstep of Mahatma, हापर कॉलिंस की ये बुक है जो कि कंपाइलेशन है जो सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर यू नो दी गई है. तो सलील माथुर और आशुतोष सलील साहब ने ये किताब लिखी. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि चीजें चेंज होती हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनको भी आगे लेके आना चाहिए. बरखा माथुर जो है वो को ऑथर हैं इस बुक की और ये अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम नागपुर. तो दोनों ने मिलकर ये किया. तो इसके अंदर अकाउंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो 2 अकाउंट्स या 3 अकाउंट्स की मैंने चर्चा की वो है, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट देन वी कैन टेक these examples and we can appropriately quote them wherever required. This is what I want to convey with you the message. Similarly, Putin, the president of Russia, he is talking about plundering of India and Africa by the colonial powers, colonization. और उन्होंने कहा कि वेस्ट है जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ बॉर्डर्स है, ये प्रिंसिपल, ये लाइन आप लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ बॉर्डर्स, उसको उसने फॉलो किया, नहीं फॉलो किया कभी भी. दैट्स व्हाट ही वांट्स टू से. तो वेस्ट हमें ना सिखाए कि क्या सही है क्या गलत है. So called West is actually the colonizer monster. That's what he wants to say. South Koreans are having few babies and the solution is more nannies, because if the cost of living and the cost of hiring a nanny, यानी दाई कह लीजिए या आया कह लीजिए, अगर उसका कॉस्ट कम होगा तो हम जो है ज़्यादा रख पाएंगे और हाई कॉस्ट की वजह से फिर लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मानना है साउथ कोरियन मेयर, जो मेयर हैं उनका मानना है. और उनका कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हम जो है आगे बढ़ पाएंगे. कमिंग टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट history, then I am talking about Mahatma Gandhi and how Mahatma Gandhi ji for the first time went to Chhattisgarh, and that's how Raipur district committee was formed, and Pandit Ravi Shankar Shukla was made its first secretary, and Gandhi ji participated in Kandel Canal Satyagraha. I repeat, Kandel, Kandel, it's on your screen. कंडेल कैनाल सत्याग्रह धामात्री, जहां पर 25,000 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया और किसानों ने जो है टैक्स कलेक्ट करने का जो लॉ था वो अपना विड्रॉ कर लिया. इससे पहले गांधी जी वहां पहुंच पाते. गांधी जी वहां सुरेंद्र लाल शर्मा जी के कहने पर पहुंचे, जिन्हें गांधी ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है. सो बापू एड्रेस जनरल असेंबली एट मार्केट चौक एंड देन रिटर्न टू Raipur. On the very day, Bapu, while addressing a gathering at Kotwali Maidan, he said people should live life with truth and non-violence. So उस जगह को भी गांधी मैदान का नाम दिया गया. Similarly, his demand for a separate state for Chhattisgarh were first raised इन 1920s. इसी टाइम पर छत्तीसगढ़ स्टेट के सेपरेट स्टेट की बात की गई थी. रायपुर में और भी कुछ हिस्टोरिक मूवमेंट हुए हैं. फॉर एग्जांपल, गांधी जी ने जब ईविल ऑफ अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात शुरू की तो गांधी जी ने 1933 में मिशन उन्होंने स्टार्ट किया टू कनेक्ट विद द पीपल, और इसलिए आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो जो है ज़्यादा समय के लिए वहाँ रहे. तो दीज आर सम एग्जांपल्स, बट देन दिस इज हाउ एट द ग्रास रूट लेवल वी हैव टू अंडरस्टैंड डीकोलोनाइज हिस्ट्री, कि हिस्ट्री ने कैसे चीज़ें अपने आप को जोड़ी है. एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिच लिस्ट जब बनती है, जब हम सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी के एंगल से अगर हम बात कर रहे हैं, तो रिच लिस्ट जो बनती है वो इस बात से नहीं बननी चाहिए कि आपके पास पैसे कितने आए. इस बात से होनी चाहिए कि आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी थी वो कितनी इंस्पायरिंग थी, आपसे और लोग कैसे इंस्पायर हो पाए. दैट इज हाउ द होल पॉइंट. बिकॉज अगर हम बात करें अनस रहमान जुनैद, फाउंडर एंड एमडी ऑफ हुर्रून इंडिया, वो जो ग्रोइंग ट्राइब जो इंडिया में हो रही है रिच लिस्टर्स की, तो उनका कहना है कि भाई देयर आर नंबर ऑफ ट्रेंड्स. नंबर ऑफ इंडियन डॉलर बिलियनियर्स हैव गॉन फ्रॉम 55 टू 221. तो रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है, नंबर भी बढ़ गए हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जोग्राफिकल स्प्रेड भी वेल्थ क्रिएटर्स का बढ़ गया है. पहले वेल्थ क्रिएटर्स जो है वो 15-16 सिटीज नाउ आते थे, अब नाउ देयर आर 122 सिटीज, एंड द एज इज कमिंग डाउन, क्योंकि द यंगेस्ट पर्सन इज शिवेंद्र मोहन सिंह एट 37, और पहले था
पहले आप अगर देखते तो जेप्टो के को फाउंडर जो है, अगर आप बोलेंगे केवल्य वोहरा, ही इज जस्ट 19। तो पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। और पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट मच अबाउट फैसिनेशन जो हमें होनी चाहिए वेल्थ से, इट इज़ फैसिनेशन अबाउट द हाउ दे क्रिएटेड इट। सो हाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम डिस्पैरिटी इंडिया में होना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो है पॉइंट ये है कि अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग जगह जगह फैलते जाएंगे जो ज़्यादा रिच होंगे, तो एक एंटरप्रेन्योर जो होगा वो और लोगों को भी जॉब देगा, और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, ज़्यादा फिलंथ्रपी करेंगे। तो देर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, दैट इज व्हाट वी कैन से। So the focus must not be on just wealth creation, but must be on ethical wealth creation. You know, it should be on ethical wealth creation. That is one of the points I want to tell you here. Similarly, moving further, this is of the this I should say 2nd October only. Moving to the next business line में हमें कुछ खास मिला नहीं था. We are not doing it today. We are moving to the Hindustan Times, and we are talking about inclusive growth, because it has been a coming questions, regular question in general studies paper 3 also, and otherwise also in essay. So India is embarking on a 25-year journey towards 100 years of independence. तो उसको किस चीज़ पे फोकस रखना होगा, ये हमारी कोशिश है. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल एनर्जी सोर्स, आईटी सेक्टर. सेकंड, देयर मस्ट बी फोकस ऑन कंट्री साइड, सो एडमिनिस्ट्रेटर्स या एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू लुक फॉर रूरल गवर्नेंस. एंड अनदर एलिमेंट शुड बी ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये सारे की एरियाज हैं, क्योंकि जब तक सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तभी आप सब चीज़ों को इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, चाहे एलोपैथी है, सिद्धा है, यूनानी है, इंडियन सिस्टम में मेडिसिन है, और प्रिवेंटिव केयर है, जब तक ये नहीं होगा तो हम ओईसीडी कंट्रीज के लेवल तक नहीं जा पाएंगे. जहाँ तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात है, देन वी हैव टू मेक श्योर दैट सर्विसेज पहुँचें. जैसे मोबाइल हेल्थ सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. And in case of aging population, we must be able to create a system where we are able to take care of not only aged people but also people with disabilities. Government has to approve, government and society has to create a surveillance mechanism. हमें थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें स्टार्ट करने पड़ेंगे. सो दिस इज एन एसे मोड. इतने सारे फैक्ट्स से बताए जा रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन के अंदर तमिलनाडु फॉर एग्जांपल इज हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट इन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियोज 51.4 इन द कंट्री, और 2047 तक जीईआर 90% तक पहुंच जाएगा. सो दैट हैज टू बी कीप इन माइंड. सिमिलरली वी एस्पायर टू बिकम 5 ट्रिलियन इकॉनमी फॉर एज सुन एज पॉसिबल, जैसे हम कहें तो. लेकिन पॉइंट ये है कि ना सिर्फ तमिलनाडु, बट देयर शुड बी अदर एरियाज ऑल्सो, वेयर अदर जोन्स ऑल्सो, जहाँ पर हमारा इनपुट आना चाहिए. सिमिलरली एमएसएमई है, तो एमएसएमई के अंदर भी जो है टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल सप्लाई चेन, लेबर, ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन को अधिक से अधिक स्किल्स मिलने चाहिए. सो दैट इज वाई पंचायत कम्स इनटू सेंटर. पंचायत में एक डिसेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटिक, सिटीजन ड्रिवन गवर्नेंस होना चाहिए. ये की वर्ड्स हैं, डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइज, सिटीजन ड्रिवन. इसको आप नोट करिए. एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनिटीज चेंज होनी चाहिए. उसको आप लेके आइए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर मैं एग्जांपल दिए हैं कि भाई ये रोल था, इसका ये रोल था, इसका ये रोल था, वो रोल को यहाँ से लिंक कीजिए. सब चीज़ें हमें एक साथ ऐसे नहीं मिल सकती हैं. सिमिलरली ग्रीन एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, नेट जीरो फ्यूचर कैन बी envisaged. सो दिस इज वन एग्जाम्पल जहां पर हम तमिलनाडु के एंगल से बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स में, लेकिन एक्चुअली में एवरीवेयर इट कैन हैपन, and all over India it can happen, and it must happen to all our different parts of India, not just one of the states, or one of the zones, or one of the regions only. It should be happening in all parts of India. Yeah, that is what should be our goal, and that is how you should be understanding the whole thing. Similarly, going for you know uh, failure is still actually success. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में ये चर्चा की गई थी. तो यानी कि अगर हम माइंडफुल हैं, और अगर हम लगातार कोशिश करते हैं, और हम अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू से समथिंग विद पॉजिटिव इंटेंशन, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी. ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए. तो हाउ टू मेडिटेट व्हेन योर ब्रेन वेवर्स एंड यू कांट स्टिल. इसीलिए जब आप मेडिटेट कैसे करें, जब आप एंग्जाइटी में हो, पढ़े कैसे जब आप एंग्जाइटी स्टेट में हो, आप इधर उधर आप वेवरिंग कर रहे हो, तो उसको आपको काम डाउन करना पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा. और उसके लिए भी एक प्रोसेस है, एक बेसिक सिस्टम है, एक बेसिक तरीका है उसका भी. कमिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर, we must understand
that what is required here in the Hindu newspaper. हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी important elements आए हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है, because there are certain areas जो repeat होते हैं, certain areas हैं जो नए आते हैं. तो our goal is to pick up those areas which can actually help us to increase our understanding, and also we must be able to make notes and areas with that. So going further, आप देखिए इधर मैं आपको उसकी आर्टिकल तक लेके चलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन आर्टिकल अबाउट स्क्रैपिंग ऑफ अवार्ड्स, यानी कि सारे जो अवार्ड हैं जो आपके साइंस बेस्ड अवार्ड हैं वो स्क्रैप करके सरकार जो है एक विज्ञान रत्न नाम का अवार्ड लेके आ रही है. यहाँ पर आपको सोचना ये है कि प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है 1940s एंड 50s में स्टालवार्ड थे और सीएसआईआर के फाउंडर थे, क्या वो अवार्ड भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये बस यहाँ पे एक मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ. अवार्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन फंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, आर&डी भी इंपॉर्टेंट है, परमिशन भी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रीमलाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट वी कैन सी ओवर हेयर. Similarly, we have covered lot of talks and ideas from the examination perspective already in the past our lectures, so there is no need to go into details for that. If we need to pick up, we have to pick up ओनली द फैक्ट दैट यू मस्ट बी एबल टू रिवाइज. हमें गांधी और अंबेडकर दोनों चाहिए. अगर मैं बात करूं बेजवाड़ा विल्सन सर की, तो बेजवाड़ा विल्सन सर कहते हैं कि गांधी दोनों चाहिए. क्यों वो बोलते हैं कि भाई अगर वो कहते हैं कि गांधी जी ने जो है बहुत इन्फ्लुएंस दिया, ह्यूज इन्फ्लुएंस दिया और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, पर गांधी जी ने एक सिस्टम क्रिएट किया. गांधी जी और अंबेडकर जी ने दोनों ने मोरल बेटरमेंट लाने की कोशिश की, लेकिन अंबेडकर साहब ने ज्यादा सिस्टमिक रिफॉर्म की बात की. गांधी जी ने मोरल की बात की और अंबेडकर साहब ने सिस्टमिक रिफॉर्म की बात की. गांधी जी की खादी हो गया, गांधी जी के बाकी इंटेंशंस हो गए, दे वर अमेजिंग एंड वंडरफुल, बट अंबेडकर साहब ने बात की कि चीजें कैसे चेंज होनी चाहिए, चीजें कैसे, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है. इट इज नॉट दैट इट शुड कंटिन्यू इन एनी वे. सो दैट इज व्हाट बेजोड़ा विल्सन सर इज सेइंग. सो जब हम इनको पढ़ते हैं या ऐसे कोई भी आप आइडिया पढ़ते हो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो है इंडिया को कैसे सोचना चाहिए या आपको आंसर में भी कैसे सोचना चाहिए. इवन दलित पॉलिटिक्स के अंदर गांधी जी और अंबेडकर साहब दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है. Okay, manual scavenging is not a policy issue. It is not merely linked with social welfare scheme. It is not only poverty alleviation or economic reform also. It is not technological issue also. It is not infrastructure development also. Because it is linked with caste, and ये जेन्युइनली डेमोक्रेटिक होना चाहिए. तो पॉलिटिक्स जो है इज अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ, ऐसा बेड़वाड़ा विल्सन साहब कहते हैं. तो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है और पॉलिटिकल लीडरशिप को उसके लिए आगे आना चाहिए, तभी चीज़ें चेंज होंगी, तभी वो जो है बहुत सारा आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप चेंज ला पाएंगे. दैट इज वाई ही इज टॉकिंग अबाउट बोथ गांधी एंड अंबेडकर इन दैट सेंस. सो दीज आर on this 2nd October very very important and crucial areas. Please do revise and pick up the key areas, and also try to make your own points and notes. Please do get back to us for any kind of support, and also for personalized curated courses and for genuine suggestions. We will always be there to support you. Please do share, subscribe and like our channel.